اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں اور مرکب اضافی کی ہم تمرین یعنی کہ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو سب لوگ نے آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہے جو جس کو پکارا جائے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سمپل والے اجرا کی طرف۔ چلیں، اب سب سے پہلا ورڈ ہم لے رہے ہیں نصر اللہ قریب۔ اب آپ لوگوں کو پہچاننا ہے کہ اس کے اندر اضافہ کون سا ہے، اضافہ کمپاؤنڈ کون سا ہے، اور دو دو لفظ کو اٹھائیں اور جوڑی بنا کر دیکھیں کہ وہ پراپرلی ساری شرطیں پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ جی ہاں جی بتائیں، نصر اللہ قریب میں کہاں پر آپ کو اضافہ دکھائی دے رہا ہے اور کیوں؟ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہے اور پاس پاس ہے تو اس لیے یہ اضافی ہے، مطلب اضافہ زیادہ ہے۔ تو کہاں پر ہے، کہاں پر ہے مطلب کون سا ہے اس میں اضافہ؟ اللہ ہی نصر اللہ ہی، اور اللہ ہی قریب نہیں ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ ہی جو ہے نا وہ پہلے اس پہ وہ مضاف الیہ نہیں ہے، اس لیے مضاف الیہ نصر ہے۔ نو، اور کوئی ریزن بتائیں؟ وہ تو ہم مضاف اس کو بھی بنا سکتے ہیں نا۔ تو کیونکہ اس میں پہلے ہے نا مضاف الیہ آتا ہے، اس لیے نصر ہے نا مضاف الیہ ہے۔ نہ دیکھیں اس کی شرطیں بتائیں، آپ لفظوں پر نہیں جائیں۔ دیکھیں ہمیں ٹرانسلیشن سمجھ لے نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو ٹرانسلیشن نہیں آتا، اس لیے ہم نے ٹرانسلیشن نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب جن کو ٹرانسلیشن آتا ہے وہ بھی ابھی سمجھے کہ ہمیں نہیں آتا، اب اس کو اینالائز کریں اور بتائیں کہ اللہ ہی قریبن کیوں مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک تو اپنا مضاف کبھی بھی ہے نا تنوین نہیں لیتا ہے اور ال نہیں لیتا ہے، اس کی شرط ہے، اس لیے اور جر میں ہوتا ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ۔ ہاں، تو قریبن جو ہے وہ اس کو ہم مضاف الیہ نہیں بنا سکتے بیکاز وہ جر میں نہیں ہے۔ سمپل، دو لفظوں میں کوئی ایک کی بھی شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اضافہ نہیں بن سکتا، بیکاز قریبن جو ہے بغیر جر سٹیٹس کے ہے۔ اگر جر سٹیٹس ہوتا تو ہم اینالائز کرتے آگے، اور لیکن یہ جر ہی نہیں دے رہا تو ہم اس کو مضاف الیہ نہیں بنا سکتے، اور مضاف الیہ کی سب سے اہم شرط تو جر ہونا ہے، چاہے وہ دونوں قریب ہوں، چاہے ہاں سمجھ رہے ہیں آپ۔ اور جو اللہ ہی ہے، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جو ورڈ ہے وہ ایکسیپشنل کیس ہے، اللہ میں یہ ال لگا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا ال جو ہے اس کے اندر ہے، اور آپ اللہ پر ال لگا بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ سب سے ایکسیپشنل ورڈ ہے جس کو ہم لائٹ کی جگہ بھی اور ہیوی کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ ہاں، تو ہمارے پاس یہ ریزن ہے کہ قریبن نصر اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتا ہے، بیکاز نصر جو ہے لائٹ ہے اور اس پر ال بھی نہیں ہے، اور اللہ ہی جو ہے جر میں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں، تو نصر اللہ ہی اضافہ ہے۔ لیکن اللہ ہی اور قریبن اضافہ نہیں بن سکتا کیونکہ قریبن جو ہے جر سٹیٹس میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ دوسرا بھی کر کے بتا دیں۔ الشیطان عدو للانسان، اب بتائیں، دو دو ورڈ کو اٹھائیں اور چیک کریں کہ کون سا مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، ان میں سے کون سا حصہ مضاف مضاف الیہ والا ہے۔ پہلا ہم نے کر لیا نا، تو آپ دوسرا کریں۔ ہاں، کون سا؟ یہ الشیطان عدو للانسان، جی، تو یہ اس میں سے کون سا پارٹ، کون سا حصہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے؟ عدو الانسان،
अदुवुल इंसान, क्यों? अश-शैतानु अदुवुन नहीं हो सकता मुदाफ मुदाफ इलैह। क्योंकि अल नहीं लेता है मुजाफ, इसलिए। हाँ, अश-शैतान मुदाफ अगर हम बनाना चाहें तो शैतान, अश-शैतान आ रहा है, अल के साथ आ रहा है, तो पहले ही कंडीशन में वो मतलब प्रॉपरली पूरी नहीं हो रही है, तो अश-शैतान मुदाफ नहीं बन सकता। तो अदु बन गया है क्या मुदाफ? नहीं, अदू बनेगा, लेकिन वो हैवी है। अल हटाना, अल नहीं है ना उसमें, लेकिन वो तो हो गया ना। अदु, अदु हैवी है, अदू नहीं, हैवी नहीं है। अदू वो है, लाइट। मुजाफ है वो। हाँ मुदाफ है, क्यों है? क्योंकि वो उसकी सारी शर्तें पूरी हो रही है। सारी एक शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं? में नहीं है तनवीन, वो उस पर लाइट भी है और अल भी नहीं है। हाँ गुड। और अल इंसान हाँ वो तो है, मतलब वो क्या? मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह है, यानी क्या शर्त है उसकी? नहीं है ना, अल लगा हुआ, मुदाफ, हाँ, लेकिन अल लगा हुआ इस पर, तो तो वो तो चलेगा। मुदाफ, वो वो तो चलेगा। चलेगा। ओके चले। तो मुदाफ इलैह ने ऐसी कोई शर्त हमें नहीं बताई है कि मुझे अल चाहिए नहीं चाहिए, उसने सिर्फ कहा मुझे जर बना दो, और इंसानी जर में है, तो इसका मतलब वो मुदाफ इलैह होगा। वेरी गुड। तो यानी अदू जो है यहाँ पर लाइट है, विदाउट अल है, और जो इंसानी है वो जर स्टेटस में है, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब भी हैं, इसका मतलब ये दोनों मिलकर इदाफा बना रहे हैं। गुड, बारकल्लाहु फीकुम। तो यहाँ पर, यहाँ मुरक्कब इजाफी अदुल इंसानी है, इसका मतलब जब हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो इंसान को पहले लाएंगे उर्दू में और अदू को बाद में। इंसान का अदू, अदू का अगर हम तर्जुमा आपको बताएं, दुश्मन, इंसान का दुश्मन, और इंग्लिश में तर्जुमा होगा एनिमी ऑफ मैनकाइंड, एनिमी ऑफ मैन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप तर्जुमा करेंगे, का की के दरमियान में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पर इदाफा मिल गया। उर्दू में तर्जुमा करते वक्त उल्टा कर दें तरतीब को, और इंग्लिश में जब तर्जुमा करेंगे तो बिल्कुल सीधा, जो पहला वर्ड है उसको पहला रखें, फिर ऑफ लगाएं, फिर लास्ट वर्ड को लिख दें। तो अदू ऑफ इंसान, अदू ऑफ इंसान, अब जो भी वर्ड का तर्जुमा होगा वो हम कर देंगे। अदू ऑफ इंसान खुद बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि चारों शर्तें पूरी हो गई। अगर हम इसका तर्जुमा करने लगे तो क्या बन जाएगा? अश-शैतानु अदुव्वुल इंसान, शैतान दुश्मन, इंसान का दुश्मन है, शैतान इंसान का दुश्मन है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, बताएं। कौलुर रसूली अस्सलाम हक़्क़ुन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ पर पहचाने, दो दो लफ्जों को मिलाएं, देखें, चेक करें कहाँ पर बन रहा है इदाफा। कौलुर रसूली इदाफा बनता है कैसे? क्योंकि फर्स्ट कौलु वर्ड में अल भी नहीं है और वो लाइट है, गुड। और और रसूली जर स्टेटस। जर स्टेटस में, और अल के साथ है रसूली, तो हाँ नो प्रॉब्लम, बस जर है उसकी शर्त, तो हाँ बस उसकी शर्त ये वो जर है, इदाफा तो बनता अल हो ना हो हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। चलें है। ठीक, फिर और अर रसूली हक रसूली और नहीं कौलू बनता बनेगा, क्योंकि अर रसूली और हक रसूली बनेगा। हक नहीं नहीं क्यों नहीं बनेगा, बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अल आ जा रहा है, और रसूली के साथ अल हाँ, आ जा रहा है, अगर हम अर तो रसूली को शर्त मुदाफ बनाना चाहें तो अल तो वो कबूल नहीं करता, इसका मतलब वो मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं बन सकता। इसका मतलब कौलु रसूली ही मुदाफ इलैह है। तो जब हम तर्जुमा करेंगे तो कैसे करेंगे? कौलु ऑफ अर रसूल। तर्जुमा आपको नहीं भी आता हो तो आप ऑफ लगा रहे हैं अभी, ठीक है। यानी अब उर्दू में तर्जुमा करेंगे अर रसूल का कौल, ठीक है, अर रसूल का कौल, ठीक है, इस तरीके से आपने तर्जुमा करना है। रसूल का कौल हक है। चलें, बारकल्लाहु फीकुम। नेक्स्ट, हाँ जी, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी। वलिल्लाहि मुल्क नहीं हो सकता, वलिल्लाहि और मुल्कु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पहला ही वर्ड जर है मैम। तो मुदाफ की तो ये शर्त ही नहीं है कि मैं जर हूँ या वो हूँ। शर्त ही नहीं, और सेकंड वाला वर्ड जो है रफा में है, मुल्क समावाती वल अर्द बन सकता मैम। हाँ,
आपने ये कहना है कि मुल्कु जर में नहीं है, लिल्लाही मुल्कु जर में हो, रफा में हो, कुछ किसी में भी हो, उसका कोई मसला नहीं है। मुदाफ जिस स्टेटस में भी हो, रफा में हो, नज्म में हो, जर में हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुदाफ इले जर में होना चाहिए। जर तो में होना मुल्कु, चाहिए। हाँ, तो मुल्कु चूंकि जर में नहीं है तो इसीलिए ये वल्लाही वलिल्लाही और मुल्कु नहीं बन सकते। नहीं गुड। बन सकता। हाँ, मुल्कु समावाती बन सकता है, जी मैम, तो क्योंकि बताएं कि कैसे। अ, पहला वर्ड जो है मुदाफ है मैम, और दूसरा वाला जर, नस्ब या जर हो सकता है। हाँ, मुल्कु मुदाफ है, तो मुदाफ की क्या शर्तें हैं? मुदाफ की ये शर्तें हैं कि वो लाइट है, लाइट होना चाहिए, और तनवीन के साथ नहीं है, और अल एक्सेप्ट नहीं के साथ। हाँ, तनवीन इज नॉट नेसेसरी, बस लाइट होना चाहिए, वो नून साउंड निकाल दे, चाहे वो नून के जरिए से हो चाहे तनवीन के जरिए से हो, ठीक है। तो किसी भी जरिए से नून साउंड हो सकती है, बस उसको लाइट बनाना है। और दूसरी बात, अल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मुल्कों में है बिल्कुल दोनों कंडीशन। और असमावाती, जी मैम, ये नस्ब या जर हो सकता है, और अल के साथ है। हाँ, अल के मुदाफ, साथ है। अल अल हमारी मुदाफिले की कंडीशन है। जी मैम, क्योंकि पास पास है, मुदाफ मुदाफिले बन सकता मैम। बन सकता है, चले ठीक है। अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम, यानी मुल्क समावाती जो है यहाँ पर मुदाफ मुदाफ इलैह बन सकता है, क्योंकि अस समावाती नस्ब या जर हो सकता है, जर हो क्योंकि आपने पढ़ा था आतुन आतिन आतिन, तो आतू आती आती हो गया। अब जी आती जो के है नस्ब या जर, लेकिन बाकी तीन कंडीशन पूरी हो रही है, यानी मुदाफ की दोनों शर्तें पूरी हो रही है, दोनों पास पास हैं, तो यहाँ पर हम चौथी कंडीशन को मान लेंगे कि ये असमावाती जर में ही है, क्योंकि बाकी तीन जो शर्तें हैं पूरी हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखें, ठीक है। जो एक अहम चीज है, हर हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मुदाफ इले जो है वो क्या हो, एक ही हो। मुदाफ इले कई बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर असमावाती वल अर्दी, तो अर्दी भी वैसे ही बिल्कुल है जैसे असमावाती है, लेकिन शर्त क्या होगी, अगर बहुत सारे आपको मुदाफ इले लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, एक मुदाफ रखें, और फिर उसका जब मुदाफ इलैह बनाएंगे, उसी से मिलता जुलते बहुत सारे मुदाफ इलैह बनाते जाएं, और बीच में वाव लगाते जाएं, वाह वाह वाह, अस्समावाती वल अर्दी व खलकी, वाह करके आप लगाते चले जाएं, तो वो एक से ज्यादा मुदाफ इलैह बन जाएंगे, और दोनों वो ही शर्तें पूरी कर रहे हैं। देखिए, अल अर्दी भी क्या है, जर नस्ब, स्टेटस में है, और असमावाती भी जर स्टेटस में है, और दोनों के बीच में वाव आ गया, इसका मतलब इस मुल्कों के पास दो मुदाफिले हैं। तो आप तर्जुमा करते वक्त आप यूं तर्जुमा करेंगे, असमावात एंड अल अर्द ऑफ मुल्क, सॉरी, मुल्क ऑफ असमावात एंड अल अर्द, वाव का तर्जुमा एंड होता है और होता है, तो आप तर्जुमा करते वक्त क्या करेंगे, मुल्क ऑफ, अभी हम तर्जुमा नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ फ्रेमिंग बता रहे हैं, मुल्कू ऑफ असमावात व अल अर्द, या फिर आप उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा करते वक्त उल्टा करेंगे, असमावात वल अर्द का मुल्क, ठीक है, इस तरीके से आप तर्जुमा करेंगे, तो का बीच में आ जाएगा, उल्टा तर्जुमा करेंगे, लेकिन दोनों मुदाफ इलैह पहले पढ़ लें फिर मुदाफ पढ़ें, उसी तरह से पहले मुदाफ पढ़ लें इंग्लिश में, और दोनों मुदाफ इलैह उसके बाद में पढ़ लें, एंड 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 लगाकर, तो आप एक से ज्यादा मुदाफ इलैह भी बना सकते हैं किसी भी इस्म के, लेकिन शर्त यह है कि सारे मुदाफ इलैह के बीच में वाव लगना चाहिए। आप इस समावात वल अर्द व समावात वल अर्द आगे चाहे दसियों बार लगा दें या 10 अलग अलग लगा दें, तब भी ये क्या बन जाएगा, एक के बाद एक मुदाफिले आते चले जाएंगे, और वाव बीच में लगता चला जाएगा, और सारे के सारे मुदाफिले जर स्टेटस में ही होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से इसका तर्जुमा करना चाहें, मुल्क का मतलब होता है बादशाह, ठीक है, मुल्क का मतलब होता है बादशाहत, तो अगर हम तर्जुमा करें तो क्या हो जाएगा, आसमानों और जमीन की बादशाहत, द किंगडम ऑफ हेवन एंड द अर्थ, द किंगडम ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, ठीक है, तो क्या किया, द किंगडम, किंगडम ऑफ,
دی heavens and the earth. تو ہم دا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ after of before of خود بخود دا آ جاتا ہے. جب بعد والا خاص ہو تو پہلے والا خود خاص ہو جاتا ہے. تو دا ہے دا کingdom. Is that clear? سمجھ آ رہی ہے بات ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم. الحمدللہ بارک اللہ فیکم. یعنی یہاں پر دو مداخلے ہمیں ملے ہیں اور دونوں مداخلے کے بیچ میں دونوں مداخلے جر سٹیٹس میں ہیں اور دونوں کے بیچ میں واو ہے. اس سے پتا چلا کہ دو یا دو سے زیادہ بھی مداخلے ہو سکتے ہیں ایک مضاف کے, لیکن شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ جتنے بھی مداخلے ہوں سب کے بیچ میں واو آ جائے اور سارے کے سارے جر سٹیٹس میں ہی ہوں. چاہے ال آئے نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جر ہونا چاہیے کیونکہ مضاف کی صرف ایک ہی مداخلے کی ایک ہی شرط ہے, وہ پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ملک السماواتی والارضی اضافہ ہے, یعنی وہ مرکب اضافی بنا رہے ہیں. بارک اللہ فیکم, اللہ مزید فزید. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ, آپ لوگوں میں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے ریگارڈنگ دس تو ہم دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتے ہیں, ادروائز ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی کو ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں سے ملٹیپل مداخلے کی بات جو ہے؟ طلب العلم فریدۃ. طلب العلم مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہے. اچھا کیسے؟ کیونکہ تمام شرائط پوری کر رہا ہے. طلب اس کے ساتھ ال نہیں ہے, اس کا ہے نا لائٹ ہے. لائٹ ہے, اور العلم میں یہ جر حالت میں ہے تو اس لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاں, فریدتن اور العلم فریدتن وہ بن نہیں سکتا کیونکہ العلم میں ال ہے اور فریدتن میں تنوین ہے, تو وہ اس کا نہیں بن سکتا, طلب العلم کے بن سکتا ہے. تنوین تو زیر کی ہو سکتی ہے, دمہ کی ہو سکتی ہے, فتح کی. تنوین کی کنڈیشن نہیں ہے نا. کیسے پتا چلے گا کہ طلب العلم وہ جو فریضہ ہے وہ مضاف مضاف الیہ نہیں بن سکتا؟ کوئی ایک کنڈیشن جو نہیں پوری ہو رہی ہے وہ بھی بتا دیں تب بھی نہیں بنے گا کیا؟ اگر ال آگے طلبو میں تو وہ نہیں بنے گا. ہاں, العلمی میں اگر ال آ گیا ہے تو یہ مضاف نہیں بن سکتا, اور فریدتن جر سٹیٹس میں نہیں ہے تو وہ یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا. اس لیے العلمی فریضتن مضاف مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ طلب علمی مضاف مضاف الیہ ہے. گڈ. تو طلب علمی, علم کا طلب, علم کی طلب. ٹھیک ہے, العلمی پہلے لے آئیں اور طلب یعنی بعد میں لے آئیں, اور پھر انگلش میں اگر ترجمہ کرے طلب آف علم. ٹھیک ہے, دا سیکنگ آف نالج, سیکنگ آف نالج. فریضتن فرض ہے, علم کا حاصل کرنا, علم کی طلب فرض ہے. چلیں ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. نیکسٹ, عذاب اللہ شدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عذاب مضاف ہے کیونکہ اس پہ نہ تو ال لگا ہوا ہے اور نہ یہ نون تنوین والی حالت میں ہے, ہلکا ہے یعنی کہ, اور اللہ ہی جری حالت میں ہے اس لیے یہ مضاف الیہ ہے. اور اللہ ہی شدید مضاف الیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ شدید جو ہے وزن ہے, جر میں نہیں. ہاں, جر میں نہیں ہے وہ لائٹ. ہاں, جر میں نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو مضاف الیہ کی جگہ رکھ رہے ہیں نا, تو جر والی سٹیٹس اس کی پوری ہونا چاہیے شرط. تو جر میں نہیں ہے, اس کا مطلب عذاب اللہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ ہوگا. آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ کا عذاب شدید ہے. اللہ کا عذاب, اللہ کا عذاب. گڈ. دا پنشمنٹ آف اللہ, عذاب پنشمنٹ, اللہ اللہ, پنشمنٹ آف اللہ. گڈ, بارک اللہ فیکم, اللہم زد فزد. چلیں نیکسٹ, اصحاب الکہف شباب. اصحاب الکہف شباب. ہاں جی, انمیوٹ کریں اپنا مائک. اصحاب الکہف
शबाबुन, असहाबुल कहफी होगा मैम, हाँ किस तरह से? क्योंकि इसमें अल नहीं है और ये हल्का है और अल कहफी जर है। जी बिल्कुल, असहाबुल कहफी, कहफ जो है जर में है, और अल कहफी शबाबुन हो जाएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह। नहीं होगा मैम, क्योंकि अल है हाँ बस और एक ही तनवीन का काफी है अल शर्त है, कि अल आ गया और फिर वो वहां पर तनवीन नहीं, जर नहीं जर है। नहीं, हाँ जर नहीं है और यहाँ पर अल के साथ है, तो ये नहीं हो सकता। असहाबुल कहफी क्या कैसे तर्जुमा करेंगे? असहाबुल कहफी गा, गार वाले लोग, असहाब ऑफ कहफ, असहाब ऑफ कहफ, कहफ के असहाब, ठीक है, असहाब ऑफ कहफ, कहफ के असहाब यानी गार के साथी, गार के साथी, द पीपल ऑफ केव, ठीक है। अगर नहीं भी तर्जुमा आता है बस आपको उसका फॉर्मेशन बताना है, आपको वर्ड वही रखें और बस फॉर्मेशन बताएं, असहाब ऑफ कहफ, कहफ के असहाब, ठीक है। हम बस आप लोगों से ये जानना चाह रहे हैं, वर्ड का मीनिंग आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको तर्जुमा करते वक्त फॉर्म करेंगे, ठीक है। असहाबुल कहफी, असहाबुल कहफी कहफ के असहाब यानी के गार के साथी, शबाबुन जवान थे, जवान थे, ठीक है। चलें, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। द नेक्स्ट वन, और कौन करेगा? जल्दी से हैंड रेज करें कोई और, वरना हम रैंडमली किसी को भी पूछ लेते हैं। चलें, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी। कुल्लू इज मुदाफ and nafsun is mudaf ilayhi. Kullu is mudaf because it is not having al and it is light. And nafsun is mudaf ilayhi because it is in the jar status. बारक फीकुम। And what about nafsin ज़ाइक़तुन? Nafsun will not be mudaf because it is heavy. बारकल्लाहु फीकुम, that's all। तो यहाँ पर Yeah. समझ आ गया, it cannot be इदाफा। Now ज़ाइक़तुल मौती, Zaiqatu is mudaf because it is not having al and it is light. Al-Mauti is mudaf alayhi because it is in the jar status. Barakallahu feekum. That means there are two idafa in this situation, in this situation, right? Kullu nafsin mudaf mudaf ilayh. Kullu mudaf, nafsin is mudaf ilayh, और zaikatu mudaf and al-mauti is mudaf ilayh. तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि मल्टीपल मुदाफ इलैह भी हो सकते हैं, मुदाफ मुदाफ इलैह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम तर्जुमा किस तरह से करेंगे? ऑफ लगा देंगे, कहाँ पर ऑफ लगेगा, कहाँ कहाँ ऑफ लगेगा? In between kullu and nafsin. Kullu is हाँ, and जायकतु, zaiqatu, in between zaiqatu and al-mauti. बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। तो यहाँ पर जो है, हाँ जी, अभी हम बताने ही वाले हैं आप लोगों को कि क्या है ये। अब यहाँ पर जब आप कहते हैं ना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौती, ज़ाइक़तुल मौती तो समझ आ गया, मौत का जायका, द टेस्ट ऑफ डेथ, ये आ गया, ऑफ आ गया। लेकिन जब हम कुल्लू नफ्सिन तर्जुमा करते हैं तो ऑफ का तर्जुमा नहीं आता जनरली, हम कहते हैं हर नफ्स, एवरी सोल, और उसके अंदर ऑफ नहीं आता, काकी के नहीं आता, हर जान, एवरी सोल, हर नफ्स, एवरी सोल, ये तर्जुमा होता है, ऑफ नहीं आता। तो ये कुछ स्पेशल काइंड का इदाफा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल्लू नफ्सिन वाला स्पेशल मुदाफ जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, जिसके बीच में ऑफ नहीं आता और वो होता इदाफा है।
تو یہ ہے اضافہ, بالکل شرطیں چاروں پوری ہو رہی ہیں, کیونکہ کلو لائٹ ہے, وداؤٹ ال ہے, نفسن جو ہے جر سٹیٹس میں ہے, تو یہ دونوں کے دونوں اضافہ بنا رہے ہیں, لیکن ان کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اور وہ پڑھنے کے طریقہ جن میں الگ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے اضافہ کے وہ دیکھ لی انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ آپ لوگوں کے آنسر ہیں. پہلا نصر اللہ ہی تھا, اللہ کی مدد. عدو الانسانی, انسان کا دشمن, enemy of men. قول رسولی, یہاں پر قول رسولی, رسول کی بات. الٹا ترجمہ, اردو میں بالکل الٹا ترجمہ کریں گے. پھر ورڈز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ملک السماواتی والارض, بادشاہت, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اردو میں پہلے مضاف لے آئیں, پھر مضاف لے کر آئیں. ملکو, کنگڈم آف ہیون اینڈ heavens and the earth. طلب العلمی, the seeking of knowledge, اور یہاں پر طلب العلمی, علم کی طلب, اردو میں الٹا ترجمہ. عذاب اللہ, the punishment of Allah, اللہ کا عذاب. اسی طرح اصحاب الکہفی, اصحاب الکہفی یعنی the people of cave, یعنی اصحاب غار کے ساتھی. کلو نفسن, ایوری سول, یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے, اس کو یہیں رکھتے ہیں. ذائقۃ الموتی, موت کا ذائقہ, موت کا مزہ, یا دا ٹیسٹ آف ڈیتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ناؤ یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹو اضافہ, اللہ کی کتاب, دا بک آف اللہ. اس کو اب آپ نے فارم کرنا ہے, یعنی آپ کو کریٹ کرنا ہے اضافہ, مضاف بنانا ہے, مضاف الیہ بنانا ہے عربی میں. اب آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. چلیں, کون کرے گا, جلدی جلدی ہینڈ ریز کر لیں. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اس میں سے کون سا مضاف بنے گا, کون سا مضاف الیہ بنے گا, اس حساب سے ہم بہت آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. جی, اللہ کی کتاب, کتب اللہ. ہاں, اللہ کی کتابیں, صحیح, بالکل صحیح. کتابیں, کتاب کا پلورل ہے کتب. گڈ, تو کتب اللہ, کتب اللہ, تو کتب اللہ. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کتب اللہ, تو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جب بورن ہوتا ہے نا تو اس کو دما کے ساتھ رکھا کریں, کیونکہ جب ہم فتحہ یا جر کے ساتھ رکھتے ہیں, نصب یا جر میں, تو اس کا ریزن ہمیں دینا ہوتا ہے. تو ہم کتب اللہ. اب یہ ہوا کیسے, ہم دیکھیں اس کو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کی کتابیں, اللہ کی کتابیں ہیں تو الٹا ہوتا ہے عربی زبان میں, تو کتابیں مضاف بنے گا اور اللہ مضاف الیہ بنے گا. اب چونکہ کتابیں ہیں, یا پھر ہم انگلش میں اگر دیکھیں بک آف اللہ, تو بک مضاف بن رہا ہے اور اللہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو چلو یہ تو طے ہو گیا کہ کون کیا بننے والا ہے. اب جیسے ہی آپ کو ورڈ کی کیا نوعیت ہے اس کے حساب سے آپ اس کی شرطیں لگا دیں. تو بک کے لیے ہم نے شرط لگانی ہے کہ وہ لائٹ ہو اور وداؤٹ ال ہو. اصل میں کتاب کی جمع ہوتی ہے کتبن, کتابن, کتبن. اب کتبن ہمیں لائٹ چاہیے اور ال کے بغیر چاہیے, تو ال تو ہے نہیں کتب میں, کتبن میں, لیکن لائٹ کرنا ہے تو ہم کر دیں گے کتبو, تو یہ بن گیا کتبو, لائٹ بن گیا. ناؤ کتبو, کیونکہ کتبن تھا, اب لائٹ کیا ہے تو کتبو ہو گیا. اللہ جو ورڈ ہے, اللہ, اللہ, اللہ ہی, ان تینوں میں سے ہمیں جر چاہیے, تو ہم کیا کریں گے, اللہ ہی جر والا لیں گے, تو یہ دونوں مل کر بن گیا اللہ کی کتابیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم نے عربک میں فارمیشن کرنی ہے. چلیں نیکسٹ. جی, فاطمہ کے دو گھر. اب پہلے ہمیں یہ بتائیں مضاف کون بنے گا, مضاف الیہ کون بنے گا. اب تو بنے گا یہ کہ گھر, جو دو گھر ہے وہ, مضاف دو گھر بنیں گے. چلیں, اور مضاف الیہ بنے گی فاطمہ. ہاں, تو چلیں اب بتائیں کہ دو گھر کی ترجمہ کیا ہوگا عربی زبان میں. بیتینی, ڈائریکٹ نصب یا جر پہ جم مار دیا آپ نے. بیتانی, بیتانی, ہاں بیتانی
बैतानी, है ना, बैतानी। अब बैतानी हमें पता चल गया कि 2 घर है। अब इसको लाइट विदाउट अल बना दे, यानी आपको इसको मुदाफ बनाना है ना। बैतानी तो हमें असल वर्ड मिल गया, बैतानी। अब इसको क्या बनाएंगे, लाइट और बगैर अल के, तो अल तो है नहीं, लाइट करें इसको, बैतानी, बैतानी ही रहेगा। बैतानी रहेगा, श्योर। हाँ, लाइट कैसे बनता है, नून हटता है तो नून हटाएं, तो नून हटा दें, बस जो बचा है वो पढ़ दें, अच्छा, बैता, बस यही हो गया लाइट, बैता। हाँ, तो बैता। ये नून साउंड हटाना है ना, अब वो नून के जरिए से हो या तनवीन के जरिए से हो। बैता हो गए 2 घर, ये मुदाफ रेडी हो गया आपका। अब मुदाफ इलैह, माँ, फातिमा, फातिमा को मुदाफ इलैह बनाना है ना, हाँ, तो जर में कर दे फातिमा को, फातिमा ही रहेगा, उसका जर स्टेटस भी फातिमा ही रहेगा, क्योंकि इसमें इसलिए हाँ तो हरकत क्या लगेगी, पेश जबर जेर क्या लगेगी ही रहेगा, जी, मतलब इसमें वो जब स्टेटस आएगा ना, फातिमा ती आएगा क्या? फातिमा ती। हाँ, हमने नामों के लिए क्या पढ़ा था, पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं नाम। तो इसीलिए वो मैं वही कह रही थी कि फातिमा ही रहेगा। नहीं नहीं, देखें हरकत तो लगेगी। हरकत अरबी जबान में कोई भी, वो तो हम पॉज करके पढ़ लेते हैं, अरबी जबान में कोई वर्ड ऐसा है नहीं जो बगैर हरकत का हो, ठीक है। ठीक है, तो ये फातिमा तू होगा या फातिमा ता होगा या फातिमा ता होगा, फातिमा, तो ये फातिमा ता होगा, क्योंकि नाम जो होते हैं पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं। और पार्शियली फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, यूसुफू यूसुफा यूसुफा, इब्राहिमू इब्राहिमा इब्राहिमा। अब हम चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लें, बैता फातिमा, लेकिन असल में ये फातिमा नहीं है, फातिमा ता है। वो तो हम अपनी फ्लो लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जब हम फ्लुएंटली पढ़ रहे होते हैं जबान में, और जब लाते हैं तो हरकत के बगैर पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी वर्ड अरबी जबान में हरकत के बगैर नहीं होता, चाहे वो लास्ट लेटर ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हरकत होगी, वरना सुकून होगा, कुछ ना कुछ जरूर उस पर होगा, और खास तौर पर लास्ट लेटर्स पर तो होता ही है। ठीक है, तो फातिमा ता हो जाएगा, क्योंकि नाम पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये हो गया बैता फातिमा ता, यानी फातिमा के 2 घर। ठीक है, तो फातिमा बैता लाइट है, विदाउट अल है, क्योंकि बैतानी का लाइट फॉर्म बैता होता है, और अल इसमें नहीं है, इसका मतलब ये मुदाफ बन गया। और फातिमा तू फातिमा ता हमने 3 फॉर्म बनाए, रफा नस्ब जर में, फातिमा तू रफा, फातिमा ता नस्ब, फातिमा ता जर, तो ता आता है नस्ब या जर में। तो अब हमने चूंकि पार्शियली फ्लेक्सिबल वर्ड लिया है, तो फातिमा ता जर स्टेटस है इसका, तो ये हो गया मुदाफ इले जर स्टेटस में फातिमा ता। तो दोनों को एक साथ पास में लिखा जाए तो बैता फातिमा ता, मतलब फातिमा के 2 घर। ठीक है, चलें और ये जो अपन ड्यूअल का आनी का है ना, उसका डायरेक्ट बस नून हटाते ही भी ड्यूअल ही रह जाएगा, वो जैसे बिल्कुल बैता। बिल्कुल, वो अलिफ है ना, इंडिकेशन, अच्छा, अलिफ इंडिकेटर है, और बैत के आगे अलिफ लग गया, इसका मतलब 2 घर। ठीक है, ओके, अब यद के आगे 2 घर हाथ, 2 हाथ बनाना है, यदा 2 हाथ। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो आईने की बजाय आए ही लगा देंगे, बैती। हाँ बैतई फातिमा। अगर आपको जर या नज्म में बनाना है ना पहला वर्ड मुदाफ का, मुदाफ जो है, अगर बैतई फातिमा था तो कैसे हो जाएगा, बैतई, बई तई, बैती, बैतई। तई 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 नहीं है ना, बैतई नहीं फातिमा था, तो ये नज्ब या जर में होगा इस तरीके से। क्योंकि ये नज्ब हो जर हो रफा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ जर होना चाहिए। बनती पर जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलें नेक्स्ट, मदर ऑफ द बुक, मदर ऑफ द बुक, किताब की माँ। मदर के लिए वर्ड आता है, उम्मुल किताबी। उम्मुन वर्ड आता है। चलें,
हमें पूरा फॉर्मेशन बताएं कैसे किया आपने, कौन सा मुदाफ लिया, कौन सा मुदाफ इलैह लिया और क्यों लिया। हाँ जी, उर्दू में तो माँ मुदाफ बनेगा, हाँ किताब मुदाफ इलैही बनेगा। गुड, तो माँ के लिए हमने वर्ड लिया उम्मुन, उम्मुन ले लिया वर्ड, चलें उम्मुन वर्ड ले लिया और किताबुन वर्ड ले लिया, चलें तो अब ये बुन अब हटाना बताएं, है हमें। पहले मुदाफ बनाएं। जी उम्मू, उम्मू, इसको लाइट करेंगे, इसको लाइट कर देंगे, उम्मू हो जाएगा। गुड, इसको लाइट करते हैं तो ये हो जाता है उम्मू। उम्मुल, हाँ अब इसको ज्वाइन करना है हमें, तो हाँ उम्मुल अल लग जाएगा किताबों को, और ये जर में करना है इसे, किताबुन को। अगर हम यूं कर, किताबुन। इसको जर नहीं बना सकते आप, किताबुन को, किताबुन का जर फॉर्म क्या है, किताबिन, किताबिन। किताबिन, यूं भी आप यूं भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। उम्मू किताबिन। गुड, अगर आप उसको जी खास करना चाहते हैं तो अब आप कर देंगे उम्मुल किताबी। तो अब आपको ये क्या करना जी पड़ेगा, अल किताबू था, अल किताबू को आपने अल किताबी किया तो उम्मुल किताबी बन गया। ठीक है, उम्मुल किताबी, क्योंकि ये नाम हम लोगों के जबान पर चढ़ा हुआ होता है तो हम आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन उम्मू किताबिन भी हो सकता है, उम्मू किताबिन। एक्चुअली वही है जी, उम्मू हाँ किताबिन। जी है ना, तो उम्मू किताबिन भी हो सकता है। तो अगर उसको आम रखना है, आपको नकेरा रखना है तो उम्मू किताबिन, अगर आप उसको मारिफा करना चाहते हैं तो उम्मुल किताबी। ओके, चलें, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चलें नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट वर्ड है अ पेन ऑफ टू फीमेल टीचर। ये देखने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जब उसको आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट करें आपको आराम से समझ आ जाएगा। दो मुअल्लिमात की कलम, दो मुअल्लिमात की कलम। अब आप पहले हमें ये बताएं कि इसमें मुदाफ कौन बनेगा, मुदाफ इलैह कौन बनेगा। कलमु मुदाफ बनेगा, ओके, मुअल्लिमातिन मुदाफ इलैह बनेगा। कलमुन मुदाफ बनेगा, मुअल्लिमतुन मुदाफ इलैह बनेगा। मुदाफ इलैह बनेगा। चलें अब बताएं, मुदाफ बनाइए कलम को। कलमुन कलमुन, कलमु अल अल कलमु मुअल अल कलमु नहीं है, नहीं होगा, कलमु क्यों। जी नहीं, क्योंकि मुदाफ में अल नहीं आता। हाँ, मुदाफ में अल नहीं आता तो हम पढ़ेंगे कलमु, कलमु, कलम। चलें, कलमु ये मुदाफ रेडी हो गया, अल के बगैर है, लाइट है। अब मुदाफ इलैह रेडी करें। मुअल्लिम अल मुअल्लिमतानी। अल लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, जी अगर हम बगैर अल के भी बनाएं तो भी बन जाएगा, और अल लगाएं मुअल्लिम तभी। पहले पहले सिंपल रखा करें, बाद में उसको हार्ड किया करें, ठीक है। मुअल्लिमतुन है, जी लेकिन क्या कहा गया, दो मुअल्लिमात की कलम है, एक की नहीं, मुअल्लिमतानी। मुअल्लिमतानी। चलें ठीक है, मुअल्लिमतानी आपको वर्ड मिल गया, दो मुअल्लिमात, तो बन गई हमारे पास मुअल्लिमा तानी, मुअल्लिमा तानी। अब आप हमें ये बताएं, ये जर स्टेटस है, जी मैम, ये नस्ब या जर है मैम। श्योर। मुअल्लिम मुअल्लिमा तानी रफा है मैम, सॉरी, रफा है तो जर बनाइए इसको, मुअल्लिमतैनी, 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 कलमु मुअल्लिमतैनी। मुअल्लिमतैनी। हाँ, अब ये हो गया पूरा, अगर एक दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो क्या तर्जुमा होगा, दो मुअल्लिमात की कलम, पेन ऑफ टू फीमेल टीचर्स। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए। चलें नेक्स्ट, आमीन। वर्ड ऑफ यूथ,
word of truth. Sorry, I opened the answer one. Sorry, I'm so sorry. Come for this one. Reward of the believer. Believers, plural है. ईमान वालों का अजर. अजरुन मुदाफ बनेगा, मतलब अजरू मुदाफ बन जाएगा. ओके, अजरुन मुदाफ बनेगा. देन ईमान वालों के लिए कौन सी वर्ड आता है? मोमिन. मोमिन. हाँ, तो ईमान वालों मोमिनीना. अजरुल मोमिनीना. पहले हाँ, मोमिनीना. चलिए, पहले हम मोमिनूना रखते हैं. अब हमें ये बताएं, इसको मुदाफ बनाइए. अजरू बनेगा. अजरू बनेगा क्योंकि इसमें अल नहीं लगाना है, हमने उसको लाइट रखना है, तो अजरू. गुड, बारकल्लाहु फीकुम. मुमिनीना, ईमान वाले. तो ईमान वाले होता है मुमिन, और उसका प्लूरल होता है मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना. अब हमें मुदाफ के लिए कौन से स्टेटस में चाहिए? जर स्टेटस में. तो जर स्टेटस में चाहिए. तो क्या लेंगे हम? मोमिनीना. मुमिनीना. अजरू मोमिनीना. यस. मुमिनीना, अजरुल मुमिनीना. अब द बिलीवर है ना, द, तो अजरुल मोमिनीना अल आ जाएगा. अल लग जाएगा, खास कर दिया हमने. तो अजरुल मुमिनीना, द रिवॉर्ड ऑफ द बिलीवर्स. मोमिनीन का अजर. बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद. ठीक है, तो हमेशा सीक्वेंस में जाएंगे ना, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हम अल लगा देते हैं तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है. हमेशा सिंपल वर्ड से लें. अल लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है. अगर तनवीन आती है तो तनवीन हटाना होता है, और अगर कोई और वर्ड है तो उसपे तो कुछ भी नहीं करना होता, बस अल लगा देना होता है. ठीक है, चलें. बारकल्लाहु फीकुम, वंती पर जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. हाँ जी, ये थोड़ा सा टफ वाला है, कौन करेगा इसे? चलें, जल्दी जल्दी हाथ उठाएं. टफ हमें वैसे ही कह रहे हैं, सब आता है आप लोगों को माशाल्लाह. चलें, फिर हम किसी और का हाथ जो है ना खुद उठवा देंगे. जल्दी से आप लोग कोई न्यू हैंड्स दिखाई दे तो हम करें फिर. अलाउ. ट्राई करें, आई विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह. आप लोग डरते क्यों हैं पता नहीं. चलें, हम दोबारा से जो हैं उन लोगों को ही मौका दे देते हैं. चलिए. 2 books of 2 messengers. 2 books of 2 messengers. पहले बताएं मुदाफ क्या बनेगा? मुदाफ किताबानी रसूलैनी. किताबानी, 2 बुक किताबें. गुड. किताबानी ये रसूलैनी. मुदाफ बनने वाला है, ये मुदाफ बनेगा. ठीक है, और मुदाफ के लिए क्या बनेगा? रसूलैनी. रसूलैनी की मुदाफ के लिए बनेगा रसूलानी. रसूलानी. चलें, ठीक है. किताबानी को अब आपने क्या करना है? मुदाफ बनाना. जी. हाँ, मुदाफ बनाइए. कैसे बनाएंगे? किताबा किताबा. रसूल किताबा. रसूलानी. रसूलानी श्योर. रसूलैनी सॉरी. रसूलैनी क्यों? नस्ब या जर रहेगा मुदाफिले में. नस्ब या जर नहीं, सिर्फ जर रहेगा. जर रहेगा. जी. हाँ, जी, सिर्फ जर जर रहेगा. रहेगी. तो रसूलैनी, तो रसूलैनी जर स्टेटस है. ठीक है. जर हाँ, रहेगा. रसूलैनी जो है नस्ब या जर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जर स्टेटस में. तो किताबा रसूलैनी, यानी रसूलैनी. 2 रसूलों की 2 किताबें. 2 किताब. माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद. और यहाँ पर शायद मरवा भी बोल रहे हैं पीछे से, जी, रसूलानी. मैं अभी जाग रहे हूँ. हाँ, हमने सुना. अभी हम क्लास के बाद बात करते हैं जी मैम. इंशाल्लाह. चलें.
Now the remaining two. चलें, लॉर्ड ऑफ जकरिया. रब्बु जकरिया. हाँ, पूरा फॉर्मेशन बताएं क्योंकि हम समझ लें कि हम लोग बिगिनर्स हैं. रब बनेगा ये मुजाफ. मुदाफ बनेगा. चले, रब्बुन हमने ले लिया. हाँ, रब्बुन. रब्बु बन गया, वो लाइट करना पड़ेगा ना उसको, रब्बु. हाँ, चलें, अब हम इसको मुदाफ बनाते हैं. मुदाफ बनाइए इसको. रब्बु. रब्बू. हमने इसकी तनवीन हटा दी, इसको लाइट कर दिया, रब्बू बन गया. अब जकरिया. जकरिया ही रहेगा, वही वाला फॉर्मूला है फातिमा वाला. नो. ये तो मबनी है ना, जकरिया जकरिया जकरिया. हाँ, ये मबनी है. ये मबनी फातिमा है. से भी थोड़ा हटके है. रहेगा, हाँ. हाँ, ये मबनी है, यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल है. ये जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेगा. तो जकरिया जकरिया, ये जकरिया. रफा नस्ब जर तीनों में जकरिया रहेगा. तो रब्बू जकरिया यानी ये जकरिया के रब. ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम. अल्लाह मज़ीद फज़ल. चलें, नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया है हक की बात. वर्ड ऑफ ट्रुथ. The last one. जज़ाकल्लाह खैर. बनती पे बात जज़ाकल्लाह. मुजाफ बनेगा. कलिमतुन वेरी गुड. हक़्क़ुन, तो हाँ, मुजाफ बनने से कलिमतुन. ये कलिमतुन बात के लिए हमने लफ्ज ले लिया. चलो, ये मुदाफ बन गया. और हक, हक़्क़ुन, हक़्क़ुन. ये मुदाफ इलैह बनेगा. गुड. अब इसको मुदाफ बनाइए प्रॉपर. कलिमतुन क्योंकि हाँ लाइट रहेगा, इसे कलिमतु हो जाएगा. कलिमतु हो जाएगा, मुदाफ. अल नहीं होगा और लाइट रहेगा. गुड. फिर हक़्क़ुन जर फरमा आ जाएगा, हक़्क़िन हो जाएगा. हक़्क़िन हो जाएगा. कलिमतुल हक की बना सकते हैं हम. जी. सही होगा वो. अल लगा सकते हैं हम जी मैम. मुदाफ इलैह में. हाँ लगा सकते हैं मैम. गलती तो नहीं हो जाएगी रूल में. नहीं. हाँ, क्योंकि जर मुदाफ फा में इलैह की रहना, शर्त. अल हो या हाँ, ना. बस अल हो या ना हो, जर में होना चाहिए. कलीमतुल हक की भी हो सकता है, कलीमतु हक्किन भी हो सकता है. दोनों ही सही है. और दोनों में अल हो या ना हो, क्योंकि मुदाफ इलैह की अल वाली कोई शर्त नहीं है. बारकल्लाहु फीकुम. अच्छा, हमें ये बताएं, ये कलीमतुल हक, कलीमतु हक्किन है, कलीमती हक्किन हो सकता है. जी. कलीमती हक्किन हो सकता है. नहीं मैम. कलीमती मुजाफ हक्किन नहीं में हो सकता. हो सकता है मैम. कलिमती हो सकता, कलिमता हो सकता. वेरी गुड. कलिमत. यानी जी. कि अल में मुदाफ लगा जो है सकते हैं. उसकी कोई शर्त नहीं है. हाँ, मुदाफ में रफा नस्ब जर की कोई शर्त नहीं है और मुदाफ इलैह में अल की कोई शर्त नहीं है. तो ये याद रख लें पॉइंट. मुदाफ इलैह में चाहे अल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. और मुदाफ जो है चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि जो उनकी शर्तें हैं बस वो वही मनवाते हैं. उसके अलावा चाहे आप उनको जिस फॉर्म में रखें. के बारकल्लाहु फीकुम. अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई. लेकिन ये सारी एक्सरसाइज अलग अलग लोगों ने करी है, एक एक पॉइंट. लेकिन आप लोगों को अपनी बुक्स में सारे लिखना है खुद से और फिर यहाँ से टैली करना है. यहाँ पर आंसर्स हैं, आप लिख लें पहले और फिर उसके बाद टैली कीजिएगा इंशाल्लाह. ठीक है. और कुछ ना समझ आए तो आप अपने इंचार्जेस से पूछ लीजिए या फिर हमसे पूछ लीजिएगा. नो प्रॉब्लम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम. हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं. आज हमने फ्रेगमेंट की सबसे पहली फ्रेगमेंट पढ़ी है, यानी कि जो क्या कहते हैं, जुमला नाकिस या मुरक्कब नाकिस भी आप कह सकते हैं, जुमला नाकिस भी कह सकते हैं. वो जिसमें बात पूरी नहीं होती. देखिए, कहीं पर भी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें कहीं पे भी बात पूरी नहीं हो रही है. क्यों? जब हमने कहा हक का कलमा, या फिर हम जब कह रहे हैं कि फातिमा के 2 घर, तो बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात अधूरी है. फातिमा के घर तो क्या, तो जब क्वेश्चन मार्क लग जाए तो उसका मतलब वो फ्रेगमेंट है, अधूरी बात है,
مرکب ناقص ہے. تو ادھوری بات کو ہم فریگمنٹ یا مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص کے 5 ٹائپس پڑھنے ہیں. آج ہم نے پہلا پڑھ لیا اور اس کو کہا جاتا ہے اضافہ. اضافہ کے 2 حصے ہیں, مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ لائٹ ہوتا ہے اور ال کے بغیر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ہلکا ہوگا اور اس پر ال نہیں آئے گا. مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے, چاہے وہ جس بھی ال کے ساتھ آئے نہ آئے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, بس جر ہونا اس کا ضروری ہے, لازمی ہے. پھر اس کے بعد جو دونوں ہوں ایک دوسرے کے بالکل برابر برابر ہوں, ہرگز بھی ان کے درمیان کوئی نہ آئے, تب یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ اضافہ بن گیا. اور ایک پوائنٹ جو اہم یاد رکھنے والا ہے, ایک سے زیادہ مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب مضاف الیہ بہت ایک سے زیادہ لکھے جائیں, بہت سارے لکھے جائیں, تو ہر مضاف الیہ کے درمیان میں ایک واو آنا چاہیے اور ہر مضاف الیہ جر سٹیٹس میں ہی ہونا چاہیے, تبھی ہم ملٹیپل مضاف الیہ اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم نے اگزامپل دیکھا تھا ملک السماوات والارض, بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اسی طرح سے ہم نے اور پوائنٹس دیکھے کہ کچھ مضاف الیہ ایسے بھی ہیں جن کے اندر آف نہیں آ رہا لیکن وہ ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تو ابھی اس چیز کو یہاں پر پاز کر کے رکھتے ہیں, وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھ لیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. ہاں جی, اور ال آنا نہیں آنا اس پر کوئی اہم بات نہیں ہے مضاف الیہ پر. اسی طرح سے مضاف میں چاہے وہ رفع ہو, چاہے نصب ہو, چاہے جر ہو, وہ جس حالت میں بھی ہو لیکن ہو وہ لائٹ وداؤٹ ال, تو وہ مضاف بن جائے گا. چلیے الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ, یہ تو ہے آپ لوگوں کے پاس ٹیلی کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے, بٹ آپ کا ایک ہوم ورک یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 5 مضاف الیہ کے جو مطلب ایگزامپلز ہیں آپ قرآن کریم میں سے تلاش کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا تو ہم آپ کو پیراگراف کہیں سے دے دیں گے کوئی سورے میں سے, یا پھر آپ لوگ خود سے تلاش کریں انشاءاللہ. چلیں جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.